Hey everyone, welcome back. So in this video, I'll be sharing my own strategy that what you should do and what I exactly did in the last 2 months before GATE Computer Science exam. Number one point is strategic revision technique. First, you need to identify what are the weak areas in the entire 12 subjects for your GATE exam. And that can be a subject, that can be a chapter, that can be a topic. So whatever it is, create a chart, ठीक है, कि मेरा इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक में थोड़ा वीक हूं, ऐसे करके पूरा एक लिस्ट बनाओ एंड देन क्रिएट अ रिवीजन प्लान कि स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक I'll cover these many subjects, starting from the next to next week I'll cover these many subjects. तो क्या करना है, लिस्ट बनाओ कौन से सब्जेक्ट पे आप वीक हो एंड देन क्रिएट अ रिवीजन प्लान एंड देन रिवाइज दो सब्जेक्ट्स अगेन एंड अगेन. आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है देन यू कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोज अंटिल यू गेट वेरी मच कंफर्टेबल. एंड ऑल्सो इफ यू फील कि कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक पे आप वीक हो, उसका थ्योरी देखने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है. सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन अंटिल यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल on that topic. Number 2 is very important, mock test and analysis. So try to take full length mock test as many as possible at this point. आपको अगर syllabus complete ना हो पाए तो try to solve the subject wise test at least as many as you can so that you feel the exam vibe before the actual exam, ठीक है. Well, when I talk about the mock test, the $1 million question is from where to practice the mock test. So in this regard, let me share you a very good resource from where I also practice during my preparation time. So Geeks for Geeks will be hosting the free mock test for GATE Computer Science as well as GATE Data Science. So this will be a complete syllabus mock test, 3 hours, 65 questions, and you will be getting MCQ, MSQ and NAT type questions which will cover the entire GATE syllabus for computer science as well as the data science. So as I said, this mock will also help you understand what are the weak areas and what are the strong areas where you need much more improvement. So you can just log into the Geeks for Geeks portal and register for the mock test. So all these mock tests will be totally free. Just check out the link on my description and appear for this free mock test by Geeks for Geeks. Now, what do you have to do? What do you have to analyze from the mock test? There is two things, okay? Number one is you should not focus what are the number of correct answers or what are the marks you are getting from the mock test. You have to focus on what are the number of incorrect answers and where you are lagging, okay? Mock test is only for identifying your mistakes. It's not only just कि मैं कोई दोस्त को बोला कि भाई मेरा 70 मार्क्स आ गए ये मॉक टेस्ट पे, आई फील वेरी मच कंफर्टेबल. आप एग्जाम हॉल में जाओ, आप 50 मार्क्स भी नहीं कैरी कर पाओगे. दैट इज द रियलिटी एंड बहुत लोगों के साथ ये होता है. डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है. आइडेंटिफाई कि आप अगर 10 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 10 मॉक टेस्ट से हर एक मॉक टेस्ट का कितना गलत आपने किया, कौन से सब्जेक्ट से आप गलत कर रहे हो, क्या क्या चीज मिस्टेक्स हो रहा है, चाहे वो सिले मिस्टेक्स हो रहा है या फिर आपने कॉन्सेप्ट भूल रहे हो या फिर आपने कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज एरियाज एंड वर्क ऑन दैट. पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपने पूरा साल भर के प्रिपरेशन किया, बट इफ यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस एट द एग्जाम हॉल दैट वोंट इंक्रीज योर मार्क्स. चाहे आपने कितना प्रिपरेशन कर लो, they won't consider, they only consider your marks and rank in the GATE exam. And the second thing from the mock test analysis is the time management. आपने कितना टाइम ले रहे हो for each section and for the entire syllabus, ठीक है. They can't solve the entire paper within these 3 hours. So you need to be very very quick at this point of time, not to be very quick, not to be very slow, ठीक है. And also analyze कि आपने aptitude section में कितना टाइम ले रहे हो, अपने 2 मार्क्स क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो, अपने मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो, 1 मार्क की क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो. ट्राई टू एनालाइज दैट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कहाँ पे आपका मिस्टेक्स हो रहा है. आप मान लो एक मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट अपने दे रहे हो, आप 65 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाया, तो अगेन गो बैक टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड जस्ट फाइंड आउट कि इसी क्वेश्चन में आपका टाइम कितना लगा. आई थिंक आप आजकल जो मॉक टेस्ट की यूआई है ये सारी चीज़ अवेलेबल हो जाता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया एक एक क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन का रिजल्ट कितना आया. ऑल द स्टैटिस्टिक्स विल बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट यूज इट, ठीक है. क्योंकि आपके पास वो 3 घंटा होगा टू डिसाइड योर फॉर्चून फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है. आप अगर 3 घंटे में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, जस्ट लाइक इंडिया फाइनल में आके हार गया क्योंकि फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए. चाहे आप सेमीफाइनल तक कितना भी अच्छे परफॉर्म कर लो, फाइनल विल डिसाइड हु विल बी द चैंपियन. एंड दैट्स व्हाई हियर आल्सो that 3 years will be the deciding factor
what you will get at the end of the exam. तो इन 3 घंटे के लिए you have to practice a lot of mock tests. Number 3 is focused problem solving. So what does this mean? If you feel that you are weak at some areas or at some subject or at some topic, so try to keep practice more number of questions from that section. जैसे मैंने भी किया, डिस्क्रीट मैथ का थोड़ा बहुत चैप्टर्स था, डेटाबेस का थोड़ा बहुत चैप्टर्स था, ओएस का कुछ चैप्टर्स था. वो चैप्टर्स में आई वाज फीलिंग अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट. अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करता था, बट क्विकली हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, आई वाज फीलिंग डिस्कम्फर्ट. तो मैंने किया उसी एरिया में जितना प्रीवियस क्वेश्चन आया, आई केप्ट ऑन सॉल्विंग ऑल ऑफ दैट एंड दैट इंक्रीज्ड माय कॉन्फिडेंस. सिंपल सा बात है, आप जितना सॉल्व करोगे, जितना रियलिटी में घुसोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड दैट विल ऑल्सो इंप्रूव your performance in the mock test, as well as you'll be very good in solving those questions in the exact exam hall. And number 4 is one of my favorite and the most important thing that you need to maintain within these 2 months, and you should not divert from this plan, is to maintain a healthy lifestyle and a balanced diet. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अंडररेटेड है. लोग सब कुछ भूल के, सब छोड़ के प्रिपरेशन करते हैं. एट द एंड दे फॉल सिक ऑन द एग्जाम डे. तो भाई मतलब क्या है, आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम हॉल में जा ही नहीं पा रहे हो. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? कोई आपको सुनेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया, आपने कितना घंटा एफर्ट लगाया? घंटा सुनेगा. ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड बोथ फिजिकली एंड मेंटली. क्या क्या करना है मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट्स बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू गेट एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट, आपने 4-5 घंटा सो रहे हो एंड बाकी पूरा दिन पढ़ रहे हो, बट दैट इज नॉट एन आइडियल स्ट्रैटेजी. ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी अगर बनाना है, आपको हेल्थ के लिए भी थोड़ा स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर लो. उसके साथ बैलेंस डाइट खा लो. अब जंक फूड, बहुत सारा स्पाइसी खाना मत खाओ, क्योंकि आपका अंदर से यू विल फील सिक. ठीक है, अंदर से आपका शरीर का उतना एनर्जी नहीं मिलेगा जितना आपका बैलेंस डाइट से मिलता है. ठीक है, सो ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी रूटीन. आप चाहे वेज हो नॉन वेज हो, ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी रूटीन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा बहुत आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन खेल लो, पूरा दिन जिम कर लो, ऐसा कोई नहीं. थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है. ठीक है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू क्लाइंब स्टेयर्स, आई यूज्ड टू जॉग, आई यूज्ड टू वॉक. एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है. आप आधा घंटा कर लो एक दिन में. ठीक है, आफ्टरनून में जाके 4-5 बजे या फिर 6 बजे आपको अगर इवनिंग वॉक पे जाना है वो भी कर सकते हो. बट एटलीस्ट यू नीड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज टू कीप योर फिजिक्स एक्टिव. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज try to distract yourself from the set of people, from the negative people rather I can say, because they will keep your confidence level down, they will keep your motivation down. And don't take much opinion from the others, and try to meditate for sometimes. At least 5 to 10 minutes meditation per day is very important. I used to do quite often and I got the result. आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका डिसीजन पावर शांत रहेगा, आपने जो चीज़ पढ़ा वो भी आपके दिमाग में सही से रहेगा. सो मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी यूजफुल. तो बस ये सिंपल चीज़ करना है. इसके अलावा आपको बहुत चिंता करने की, बहुत स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज for your mind. Anyway, if you have any questions, please feel free to drop in the comment section and also stay connected with me on LinkedIn. So आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, and thanks for watching this video.